Good morning, everyone. Welcome to your class. Today, we will start our second chapter of business study Principles of Management. Our second chapter Principles of Management. Now, what are these principles? These are the guidelines for doing managerial activities in an effective and efficient manner. These principles are the guideline for doing what? Managerial activities. These are the guideline to do the managerial activities in an efficient and effective manners. अपनी मैनेजरियल एक्टिविटीज को एक इफेक्टिव और एफिशिएंट वे में करने के लिए ये हमें गाइड करती हैं, हमें बताती हैं. और इन अदर वर्ड्स, these are the rules or regulations or values which are used by a manager to manage business activities. एक मैनेजर बिजनेस की एक्टिविटीज को कंडक्ट करने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस का यूज करता है, वी कॉल दैट रूल्स एंड रेगुलेशन एज अ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. Okay, these are the guidelines to conduct the managerial activities. Now we will study features of the principle of management. Features of principles. Our first feature is universal applicability, universal application. These principles are applied universally. It is applied everywhere. It is applied in India, it is applied in America, it is applied in China, it is applied everywhere to conduct managerial activities. ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में इसको फॉलो किया जाता है, सभी कंट्रीज में इसको फॉलो किया जाता है. ठीक है, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी. इट कैन बी अप्लाइड इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और इट कैन बी अप्लाइड इन नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी हमें मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना है और नॉन बिजनेस के भी. एनी wherever our business is big or our business is small, it is applied everywhere. Like there is a principle, there is one principle of management, that is division of labor. This principle says that the total work should be divided into small parts. The total work of any business should be divided into small parts, and then this small part is assigned to an individual. ठीक है, कि टोटल वर्क को आपने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना है और फिर एक पार्ट एक इंडिविजुअल को दे देना है. सिर्फ एक इंडिविजुअल को सिर्फ एक ही पार्ट देना है, उसको दो पार्ट नहीं देने, सिर्फ एक ही काम देना है, और वो भी रेगुलर बेसिस पे. नाउ व्हाट हैपन, they can perform that activity regularly, that one activity regularly. अब डेली वो एक ही एक्टिविटी कर रहा है, तो what happens, they get specialization. वो उस काम में स्पेशलाइज्ड हो जाएगा. ठीक है, they can get specialization in the activity. और हमारा वर्क कैसे होगा, अच्छी क्वालिटी होगी, हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी. हमने यही कहा है कि प्रिंसिपल्स क्या हैं, that way which increase the efficiency of manager of a person. So it is applied everywhere. चाहे हमारे घर में भी हो, हम अगर वर्क को बांट लेते हैं, एक वर्क एक को साइन कर देते हैं, दूसरा वर्क दूसरे को साइन कर देते हैं, तो काम अच्छा होता है. तो ठीक है, इट इज अप्लाइड इवन इन आवर होम. ओके, it is also applied in America, it is also applied in China, it is applied everywhere. Now our second feature is journal guidelines. These principles are journal guidelines. It is only guideline, not the exact solution. It doesn't give us exact solution, it just provides us idea to solve any problem. Okay, it cannot be applied strictly. ऐसा नहीं है कि मैंने जो बोल दिया बस वही है, आपको जस्ट गाइड किया जा रहा है कि आप काम को ऐसे करो. अब आपको उसको कैसे करना है, उसमें थोड़ा बहुत चेंज लेके आना है, किस वे में करना है, वो आप पे डिपेंड करता है. आप उसमें लिटिल बिट मॉडिफिकेशन कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग. सो these principles are general guideline, it doesn't give an exact solution. Okay, these are guidelines. Then our next feature of principle is formed by practice and experimentation, and we also know this point as evolutionary.
एवोल्यूशनरी मतलब that take times to formed. It take time to form. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट टाइम लेता है फॉर्म्ड होने के लिए. ऐसा नहीं कि एक ही दिन में बन गए, ये एक ही रात में बन गए. नो, it takes a lot of time. It takes a lot of research. Our theorists do a lot of research. Then they make principles. जो भी बिजनेस से रिलेटेड थ्योरिस्ट होती हैं, उन्होंने काफी एक्सपेरिमेंट किया है, काफी रिसर्च किया है, उसके बाद इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट किसी भी प्रिंसिपल को बनाया है. ठीक है, एक ही दिन में नहीं बन गए हैं ये. काफी बार देखा, एक बार देखा, दो बार देखा कि ऐसा करने से ऐसा होता है. जैसे डिवीजन ऑफ वर्क की बात की कि अगर हम काम को बांट दें तो काम अच्छा होता है. ऐसे उन्होंने कई लोगों पे अप्लाई करके देखा, कई जगह अप्लाई करके देखा, तो उन्होंने ये प्रिंसिपल बनाया, डिवीजन ऑफ लेबर और डिवीजन ऑफ वर्क. ओके, then our next principle is flexibility. You know, flexibility means that have a capability to change. Our principles doesn't come with hard and fast rule. ये जो प्रिंसिपल है मैनेजमेंट के, ये हार्ड और फास्ट रूल से नहीं है. ऐसा नहीं कि जो बोल दिया बस वही. नो, ऐसा नहीं है. दीज आर नॉट अ रूल ऑफ थंब. हमें इसके ऊपर चिपक नहीं जाना, स्ट्रिक्ट नहीं हो जाना कि ऐसा है तो बस ऐसा ही, इसमें हम चेंज नहीं ला सकते. नो, हम चेंज ला सकते हैं. जो हमारे प्रिंसिपल होते हैं वो रिजिड नहीं है, दे आर फ्लेक्स. दीज प्रिंसिपल आर चेंज्ड और मॉडिफाइड विद द चेंजिंग सिचुएशन. जैसे हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज आता है, जब हमारे बिजनेस में चेंज आया, हमारे बिजनेस के एनवायरनमेंट में चेंज आया, तो हमें अपने प्रिंसिपल्स को भी बदलना पड़ेगा. जैसे अभी ऑनलाइन का ट्रेंड चल रहा है, तो हमें अपने प्रिंसिपल्स को बदलना पड़ेगा. अपनी एडवर्टाइजिंग ऑनलाइन देनी पड़ेगी, तभी हमारा काम चल पाएगा. तो वी से प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल. देन नेक्स्ट इज मेनली बिहेवियर. मैनेजमेंट मोस्टली रिलेटेड विद पीपल. मैनेजमेंट किससे रिलेट है? ह्यूमन के बिहेवियर से. दैट इज व्हाई वी कॉल दिस प्रिंसिपल एज अ बिहेवियर. इट एम इज टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर पीपल टू गेट द वर्क डन. इसमें हमें क्या करना होता है? दूसरे लोगों के बिहेवियर को मॉडिफाई करना होता है, उनको इन्फ्लुएंस करना होता है, अपने प्रभाव में लेना होता है, ताकि जो काम हम चाहते हैं वो काम करें. तो मेनली ये कैसे हैं? बिहेवियर से रिलेटेड हैं. इसमें हम ऐसा कुछ करते हैं कि पर्सन का बिहेवियर चेंज हो, पॉजिटिव बिहेवियर हो उसका. ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. सिक्स इज कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. These principles are based on cause and effect relationship, and they tell us if a particular principle is applied in a situation, what might be the result or effect. ये हमें बताता है कि एक पर्टिकुलर, अगर हम किसी काम को एक पर्टिकुलर मैनर में करेंगे तो उसका क्या रिजल्ट आएगा. लाइक देर इज वन प्रिंसिपल, द यूनिटी ऑफ कमांड. एक प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का, यूनिटी ऑफ कमांड. दिस प्रिंसिपल सेज व्हेन वी गेट ऑर्डर फ्रॉम more than one boss, then we get confused. This is the principle. अब इसने हमें बताया कि अगर हम ऑर्डर दो से ज्यादा व्यक्तियों से लेंगे, दो व्यक्तियों से लेंगे या एक से ज्यादा व्यक्ति से लेंगे, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे. ठीक है, तो इसने हमें रिजल्ट बताया कि रिजल्ट क्या आएगा? कंफ्यूजन, डिक्रीज इन एफिशिएंसी. जब हम कंफ्यूज होंगे तो हमारी एफिशिएंसी क्या होगी? डिक्लाइन होगी. तो हमें कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है कि ये कोज है तो इसका ये इफेक्ट आएगा, ये रिजल्ट आएगा. देन लास्ट फीचर इज contingent. These principles are not fixed. They are affected by the situation and circumstances. Therefore, the decision to implement them or not is taken according to situation. ये जो हमारे प्रिंसिपल हैं, they are not always fixed. हमेशा सेम नहीं रहते हैं, चेंज होते रहते हैं. जैसी हमारी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हमें अपने प्रिंसिपल्स को मॉडिफाई कर लेना है, चेंज कर लेना है. तो हमें सोचना है पहले कि क्या सिचुएशन है. हमारी सिचुएशन अगर ठीक है तो हम उस प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे. अगर वो सिचुएशन हमारे प्रिंसिपल के लिए ठीक नहीं है, देन वी डोंट अप्लाई दैट प्रिंसिपल. ओके, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. थैंक यू very much.